Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Shahid Latif, Associate Professor at Department of Computer Science, Sarhad University, Peshawar. Today we will start a new lecture from the course of Electronics 1. The course code for Electronics 1 is EE216, while this is 2-1 credit hour course. It means that we have to cover 2 hour theory per week, while there is 1 credit hour which is equal to 3 content hour lab work requirement as well. The topic we will discuss in this lecture is about VI characteristics, or simply voltage and current relation of a p-n junction diode, plus the diode models, the 3 diode models, which can be also known as a diode approximations. Course details are such that we are in week number 4, and today we will cover lecture number 7, and lecture number 7 is about the voltage and current characteristics of a p-n junction diode and the 3 different diode model, that is the ideal, the practical, and the complete diode model. Before starting our new lecture, let's have a look on the previous lectures. If you remember, in lecture number 1 we introduce our course of Electronics 1 by explaining the course description, the tentative course outlines, and the week-wise breakdown of these course outlines, the recommended books for the course of Electronics 1, the prerequisite details. We define the term electronics by informal and formal ways. In lecture number 2 we discuss the atom and the structure of an atom. We also discuss what is the Bohr model, what are the particles of an atom, that is electrons, protons, neutrons, and the nucleus. Similarly, we also discuss the atomic number of an atom. We also discuss what is valence shell and what are the valence electrons. Similarly, we discuss the orbit, which is the individual path for each electron, and the group of orbit, which is termed as a shell. Finally, we also discuss a process where the losing or gaining of electron takes place, that is the ionization. In lecture number 3 we classify the matter on the basis of conductivity, and we have as a result 3 classes, that is the insulators, the conductors, and the semiconductors. Insulators are those material which cannot conduct under the normal conditions. On the other hand, conductors are those material which can easily conduct the electric current, while semiconductors are those material which can be used either as an insulator or as a conductor. We also discuss the energy band for all these 3 classes, and finally we discuss the covalent bond and the silicon crystal. In lecture number 4 we discuss the conduction in semiconductors, which can be known as current in semiconductors, and the n-type and p-type semiconductor as well. So starting this lecture with discussing the electron and the hole pair, we discuss what is an electron and what is a hole, how the electron recombine with the hole. We also discuss the 2 types of current involved in semiconductor, that is the electron current and the hole current, a process where the impurities are added in intrinsic semiconductor, that is doping, and as a result of a doping we have either n-type or p-type. So we discuss the formation of an n-type material or n-type semiconductors and the formation of a p-type semiconductor as well. In lecture number 5 we discuss the p-n junction formation. The meeting point where the p-type and n-type meets is known as a p-n junction. So how this p-n junction is formed, and how a depletion region is formed across the p-n junction. So we discuss the formation of both p-n junction and the formation of a depletion region. We also discuss the energy diagrams during the formation of a p-n junction and the depletion region in lecture number 5. In lecture number 6 we discuss the p-n junction diode and its operation. We discuss what is biasing and how diode can be connected in forward bias and reverse bias. When we connect a diode in forward bias, so what is the forward current and forward voltage. Similarly, when we connect a diode in its reverse bias, so what is the reverse current, what is the reverse voltage, and what is the reverse breakdown voltage. In this lecture today we will discuss the voltage and current characteristics of a simple p-n junction diode. First of all, we will discuss the VI characteristic curve for the forward bias. Here we will graph the VI curve for the forward bias. Graph means कि हम इस वोल्टेज करंट के रिलेशन को ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे
Then we will see what is the barrier potential or effect of a barrier potential on the VI characteristic curve of a diode. Similarly, we will also discuss the dynamic resistance in its forward bias mode. After that, we will connect the diode in reverse bias, and we will discuss that what is the VI characteristic curve for the reverse bias and how we can graph this VI characteristic curve when the diode is in reverse bias. Similarly, then we will combine the reverse bias and forward bias characteristics of a diode, which will be termed as a complete VI characteristic curve of a PN junction diode. We will also see the effect of the temperature on the diode characteristic curve. And finally, we will discuss the diode approximations, 3 diode models, that is the ideal diode model, the practical, and the complete diode model. Recommended books for this lecture as well as this course include The Electronic Devices with Conventional Current version, authored by Thomas L. Flynn, and we are using the 10th edition of this book. If you have any latest edition or even an older edition, it is also acceptable. The second book for this course is Electronic Devices with Electron Flow version, authored by the same author with the same edition. So these are the 2 recommended books for this course, but you will see that majority of the contents of this course are taken from the first book, that is the Electronic Devices with Conventional Current version. If you remember, when we connect a diode in its forward bias, so it produces the current through a diode. मतलब जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा तो उसके अक्रॉस कंडक्शन हुआ करेगी, and when the diode is connected in its reverse bias, that reverse bias essentially prevents the current across the diode. तो इस केस में हमारे पास डायोड के अक्रॉस किसी किस्म की कंडक्शन नहीं हुआ करेगी, एक्सेप्ट फॉर नेग्लिजिबल रिवर्स करंट. हाँ, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ए रिवर्स करंट जो है वो पॉसिबल है, जिसको हमने IR से रिप्रेजेंट किया हुआ था, लेकिन उसकी अमाउंट इतनी कम होती है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. The reverse bias prevents current as long as the reverse bias voltage does not equal or exceed the breakdown voltage of the junction. अगर हम रिवर्स बाइस में वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जहां पर हमारे पास ब्रेकडाउन अकर हो जाता है. जिस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन अकर होता है दैट इज नोन एज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज, और बहुत सारे चांसेस हैं कि वहां पर एवलांची इफेक्ट की वजह से हमारा डिवाइस जो है वो डैमेज हो जाएगा. तो जब तक हम ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंच नहीं पाते, हम कह सकते हैं कि हमारे पास किसी किस्म की कंडक्शन नहीं हुआ करती. और रिवर्स ब्रेकडाउन के बाद भी अगर कंडक्शन स्टार्ट हो जाए तो नॉर्मली डायोड डैमेज हो जाता है. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा रिवर्स बाइस में पीएन जंक्शन डायोड काम ही नहीं करता. Now the VI characteristic curve for a diode when it is connected in its forward bias mode. Let's say, what is the forward current? Yeah, what will be the forward current in a forward bias mode of a diode? When a forward bias voltage is applied across a diode, जब भी हम किसी डायोड के across forward bias में voltage apply करेंगे, as shown in figure 2.9, the forward bias voltage increasing from 0 volt. तो हमेशा स्टार्ट जो होगा वो 0 से ही होगा, यानी हम वो वोल्टेज जो है जो हम डायोड के क्रॉस फॉरवर्ड बाइस में अप्लाई कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो 0 वोल्ट होगा. So resistor is used to limit IF to a value that will not overheat the diode and cause damage. फिगर 2.9 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक सीरीज में रेजिस्टर लगाया हुआ है डायोड के साथ, और इस रेजिस्टर का काम ये है कि इसने करंट को लिमिट रखना है ताकि हमारे डायोड को जो है वो फॉरवर्ड बाइस में डैमेज होने से बचाया जा सके, या जितना भी एक्सेसिव लोड होगा वो इस रेजिस्टर के क्रॉस जो है वो ड्रॉप हो. At 0 volt across the diode, there will be no forward current. According to the Ohm's law, V is directly proportional to the current. अगर हमारे पास वोल्टेज 0 होगा तो इसका मतलब है करंट भी 0 होगा, या जहाँ पर करंट 0 होता है तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी 0 होता है. As forward voltage increases, लेकिन जो हमारे पास VF जिसको हमने forward voltage कहा हुआ है वो increase होगा, IF will increase and the voltage across the diode increase. और हमारे पास
यानी जब हम बाइसिंग वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो IF भी इंक्रीज होगा और डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी इंक्रीज होगा। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड रीचेस अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट, और अगर डायोड हमारे पास सिलिकॉन का बना हुआ है तो हमें पता है कि उसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट के बराबर होता है। तो जैसे ही हमारा बाइसिंग वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है वो 0.7 वोल्ट पे पहुंचेगी, द फॉरवर्ड करंट बिगिंस टू इंक्रीज रैपिडली। तो हम देखेंगे कि फॉरवर्ड करंट में इंक्रीज जो है वो बहुत रैपिडली आता है, एज शोन इन फिगर 2.9 बी। फिगर 2.9 बी में हम देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस एज टू इंक्रीज द फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चीज़ है उसको समझने से पहले लेट्स हैव अ लुक ऑन द फिगर। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इस फिगर 2.9a में फॉरवर्ड बाइस मेजरमेंट शो जनरल चेंजेस इन फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट एज बाइसिंग वोल्टेज इज इंक्रीज। यानी ये हमने बैटरी लगाई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैटरी, और इसके अक्रॉस हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो इस बैटरी की वोल्टेज शो कर रहा है। इस डायोड के अक्रॉस हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो कि फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ ए डायोड शो कर रहा है, यानी डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड बाइस में जो वोल्टेज होगा, और IF इज रिप्रेजेंटिंग द फॉरवर्ड करंट ऑफ ए डायोड। अब हम देख सकते हैं कि जो बैटरी हमने लगाई हुई है अगर वो लेस देन 0.7 वोल्ट हो, लेस देन 0.7 मीन्स कि 0 वोल्ट है, 0.1, 0.2, 0.3 वगैरह, अगर तो वो 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट के लिए हमारे पास यहाँ पर जो करंट होगा दैट विल बी 0 एम्पियर, यानी किसी किस्म का करंट हमारे पास नहीं होगा। मगर जो जो हम वोल्टेज बढ़ाएंगे 0.1, 0.2, 0.3, यहाँ पर हमारे पास करंट भी मामूली सा उसमें इंक्रीज होगा, और VF भी उसके साथ साथ इंक्रीज होगा। VF क्या चीज़ है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। जैसे ही हमारा वोल्टेज 0.7 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 0.7 पे लेट्स से दूसरी फिगर में हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास V22 वोल्टेज 0.7 पे पहुंचता है या उससे इंक्रीज करेगा तो हमारे पास जो करंट है हम देख सकते हैं IF उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज आएगा, यानी मैक्सिमम करंट जो है उसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। 0.7 वोल्ट चूंकि बैरियर पोटेंशियल है सिलिकॉन डायोड का, तो वो इसके अक्रॉस मुस्तकिल तौर पर ड्रॉप होंगे। तो जो जो हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे उसका इफेक्ट क्या होगा कि शुरू में VF बढ़ रहा था, लेकिन 0.7 के बाद VF के अक्रॉस किसी किस्म का वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। अलबत्ता हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ फॉरवर्ड करंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। यू कैन सी दैट फॉरवर्ड करंट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एज द बाइस वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। ओके, हम पढ़ रहे थे व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इज एज टू इंक्रीज द फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज। जब हम फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं यानी बैटरी के वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, द IF कंटिन्यूज टू इंक्रीज वेरी रैपिडली। तो हम देख सकते हैं कि IF बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होता है, बट द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इंक्रीज ओनली ग्रेजुअली अबव 0.7। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर देखें करंट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, लेकिन VF जो है वो ऑलमोस्ट 0.7 वोल्ट ही है या फिर बहुत मामूली उसमें इंक्रीमेंट आया है। तो दैट इज रिजल्टिंग चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट जो होगा दैट विल रिजल्ट इन द रेजिस्टेंस, जिसको हमने डायनेमिक रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड डिक्लेयर किया हुआ है। नाउ ग्राफिंग दी VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब हमने वोल्टेज और करंट का आपस में रिलेशन चेक कर लिया, अब हम इसको ड्रा करते हैं कि लेट्स से VF और IF इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। सो VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर अ फॉरवर्ड बाइस डायोड इज शोन इन फिगर 2.10a by plotting the results of a measurement shown in figure 2.9। लास्ट स्लाइड में जो हमने फिगर 2.9 चेक किया और उसमें जो हमने मेजरमेंट्स की, अगर हम इनको ग्राफ की सूरत में लेके आए, उनको प्लॉट कर दें, दैट विल बी द VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए डायोड। सो द डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज VF इंक्रीजेस टू द राइट along the horizontal axis। अब हमें पता है कि ग्राफ जब हम ड्रा करते हैं तो उसमें हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक हमारे पास वर्टिकल एक्सिस होगी। Like here you can see that is the representing the horizontal or that is representing the vertical axis. Similarly figure A में अगर हम देखें that is the horizontal axis and that is the
वर्टिकल एक्सिस। सो यू कैन सी दैट कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ हमने VF डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से हम जितना राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास VF जो है वो बढ़ता जाएगा। इसी तरह से ओरिजिन से अगर हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास फॉरवर्ड करंट यानी करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। The forward current IF increases upward along the vertical axis, VF along the horizontal axis और IF increase होता है along the vertical axis. In figure 2.10a, the forward current increases very little. फॉरवर्ड करंट बहुत मामूली इंक्रीज होता है, कब तक? Until the forward voltage reach approximately 0.7 volt at the knee of the curve. जब तक इस कर्व में, अगर हम देखें इस कर्व में नी पॉइंट नहीं पहुंच पाता जो कि 0.7 वोल्ट यहाँ पर मेंशन कर रहा है, तब तक हम देख सकते हैं कि करंट में बहुत मामूली इजाफा हो रहा है, लाइक समवेयर ओवर हियर बहुत मामूली वैल्यू जो है उसकी चेंज हो रही है, हालांकि इसके मुकाबले में वोल्टेज हम काफ़ी बढ़ा रहे हैं। The IF scale is typically in milliamperes और यही वजह है कि यहाँ पर इस फिगर में हमने IF को मिली एम्पेयर्स में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है जिसको हम यहाँ पर इस ग्राफ में शो करना चाहते हैं। और अगर हम बड़ा स्केल रखेंगे तो फिर ये ग्राफ जो होगा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बहुत करीब होगा, तो फिर हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। एट पॉइंट ए जीरो बायस कंडीशन, पॉइंट ए हमारे पास इस फिगर का वो पॉइंट है कि जहां पर हमारे पास जीरो वोल्टेज जीरो करंट है, इस वजह से इसको जीरो बायस कंडीशन कहा जाता है। हियर यू कैन सी दैट इज अ जीरो बायस कंडीशन कि जहां पर वोल्टेज और करंट दोनों आपस में जीरो है, सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट ए। पॉइंट बी इज समवेयर ओवर हियर, इस ग्राफ पर इस पॉइंट पर हमारे पास पॉइंट बी है, और पॉइंट बी पे क्या है? द फॉरवर्ड वोल्टेज लेस देन द बैरियर पोटेंशियल ऑफ 0.7 वोल्ट। अभी हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज जो कि VF से हमने डिक्लेयर किया हुआ था, या जिसको हमने वोल्टेज अक्रॉस डायोड कंसीडर किया हुआ था, अभी वो 0.7 वोल्ट पे नहीं पहुंच पाया है। एंड एट पॉइंट सी द फॉरवर्ड वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल द बैरियर पोटेंशियल। हमारे पास जो पॉइंट सी है, लाइक ओवर हियर, यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज है 0.7 वोल्ट हम कंसिडर करते हैं कि दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द बैरियर पोटेंशियल। सो हियर यू कैन सी दैट पॉइंट ए पर वोल्टेज और करंट जीरो थे, पॉइंट बी पर वोल्टेज मौजूद था लेकिन करंट जो था वो ना होने के बराबर था, बहुत स्मॉल था, जबकि पॉइंट सी पर हमारे पास वोल्टेज मौजूद है, बैरियर पोटेंशियल के करीब है, और करंट उसमें से मैक्सिमम फ्लो हो रहा है। और अगर हम इस लाइन को ड्रा करें तो हम देखेंगे कि बहुत मामूली वोल्टेज को चेंज करते हैं लेकिन वहां पर करंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फिगर 2.10b इलिस्ट्रेट्स डायनामिक रेजिस्टेंस। अब इसी फिगर का जो सेकंड पार्ट है वो डायनामिक रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। Unlike a linear resistance, the resistance of the forward bias diode is not constant over the entire curve। और हम देख सकते हैं इस फिगर में कि यही पिछला वाला जो ग्राफ था उसको थोड़ा सा इनहेंस करके यहाँ पर या एक्सपेंड करके यहाँ पर शो किया गया है। सो यहाँ पर लिखा हुआ होगा एक्सपेंडेड व्यू ऑफ ए पोर्शन ऑफ द कर्व इन पार्ट ए, यानी पार्ट ए का जो कर्व था उसका एक पोर्शन यहाँ पर एक्सपेंडेड व्यू के थ्रू हमें शो करवाया गया है ताकि हम डायनामिक रेजिस्टेंस को समझ सकें। डायनामिक रेजिस्टेंस के मुताबिक अगर हम देखें इस ग्राफ के मुताबिक, तो शुरू में डायनामिक रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, और जो हम इस कर्व के साथ साथ जाएंगे अब द कर्व, ये मज़ीद कम होता जाएगा। मतलब शुरू में हमारे पास डायनामिक रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और जितना हम इस कर्व के साथ ऊपर की तरफ जाएंगे तो करंट की फ्लो इंक्रीज हो रही है, और करंट और रेजिस्टेंस का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, या I कैन बी रिटन दैट I इज इक्वल टू V बाई R। तो हम देख सकते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। तो जो हम इस ग्राफ के साथ जाएंगे आगे, तो इसका मतलब है कि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस जो है उसने डिक्रीज होना है। सो यू कैन से दैट द डायनामिक रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज यू मूव अप द कर्व as indicated by the decrease in the voltage of a delta VF divided by delta IF. Remember that internal resistances are usually designated by the lower italic letters, like for resistance we are using the small r. Now the resistance begins to decrease in the region of the knee of the curve and becomes smallest above the
knee where there is a large change in current for a given change in the voltage. We have already seen that up till the knee point the resistance was very high, but it was gradually decreased and it becomes smallest above the knee point. जो हमारे इस ग्राफ में नी पॉइंट था, like for example if this is a knee point, तो यहाँ तक हमारे पास at the start it was maximum, gradually decrease हो रहा था, और नी पॉइंट के बाद उसका क्या होगा कि वो हमारे पास इस पूरे लाइन के अक्रॉस जो है मिनिमम रेजिस्टेंस जो है वो शो करेगा above the knee point. Now the reverse current, or we can say that what is the VI characteristic curve for the reverse bias of a diode. जब हम अपने डायोड को रिवर्स बाइस में कनेक्ट करते हैं तो उसका वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो कैसे बनेगा. So to discuss the VI characteristic curve, let's have a look on the some parameters, that is the reverse current. Okay, what is the reverse current? When a reverse bias voltage is applied across a diode, जब भी हम डायोड के across रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यानी बैटरी कनेक्ट करते हैं रिवर्स बाइस में और उसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, सो ओनली एन एक्सट्रीमली स्मॉल रिवर्स करंट थ्रू द पीएन जंक्शन विल अपीयर. तो पीएन जंक्शन के अक्रॉस एक्सट्रीमली स्मॉल रिवर्स करंट जो होगा वो मौजूद होगा या उसके अक्रॉस फ्लो कर सकेगा. विद 0 वोल्ट अक्रॉस द डायोड, हाँ स्टार्ट में अगर हमारे पास वोल्टेज 0 होगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो रिवर्स करंट. As the reverse bias voltage increases, लेकिन जो हम reverse bias में voltage increase करते जाएंगे, there is a very small reverse current and the voltage across the diode increases. तो हमारे पास डायोड के across बहुत मामूली रिवर्स करंट होगा और डायोड के across जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इंक्रीज होता जाएगा. यानी V बाइस को इंक्रीज करने से स्मॉलर अमाउंट ऑफ ए करंट जो है वो जनरेट होगी across a डायोड और उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज टू रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड VR, फिर हमारे पास हर एक डायोड की अपनी एक रिवर्स बाइस में वोल्टेज है जिसको वो बियर कर सकता है या जो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. रीच इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज, जब ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज VBR के बराबर बन जाए. VBR इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज. The reverse current begins to increase rapidly. इस पॉइंट पर कि जब ये VBR के बराबर हो तो हमारा करंट जो है वो rapidly increase होना शुरू हो जाएगा. As you continue to increase the bias voltage, और अगर इसके बाद भी हम bias voltage जो है वो बढ़ाते जाएंगे, the current continues to increase very rapidly, but the voltage across the diode increase very little above. अब बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह फॉरवर्ड बाइस में होता था कि वहाँ पर हमारे पास बैरियर पोटेंशियल था और यहाँ पर हमारे पास ब्रेक डाउन वोल्टेज है, यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज के पॉइंट के बाद करंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, लेकिन उसके मुकाबले में वोल्टेज जो है वो बहुत कम इंक्रीज होता है. यानी बहुत मामूली वोल्टेज पर भी आपके पास करंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा. सो ब्रेक डाउन is not a normal mode of operation for most PN junction devices. और चूंकि हम रिवर्स बाइस में अपने डायोड को कनेक्ट करते हैं और रिवर्स बाइस में हमारा मकसद यही होता है कि उसने कंडक्शन नहीं करनी होती, लेकिन हम कहते हैं VBR पर वो कंडक्शन स्टार्ट कर लेता है, लेकिन बहुत चांसेस है कि VBR पर जब वो कंडक्शन स्टार्ट कर ले तो एवलांच इफेक्ट की वजह से हमारा डिवाइस जो है वो डैमेज हो जाए. तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम नॉर्मली डायोड को रिवर्स बाइस में और स्पेशली उसकी ब्रेक डाउन रीजन के आसपास जो है उसको ऑपरेट नहीं करते. नाउ ग्राफिंग द VI कर्व फॉर द रिवर्स बाइस मोड, कि जब हमने डायोड को रिवर्स बाइस में कनेक्ट किया तो हम उसका वोल्टेज और करंट रिलेशन कैसे ग्राफ करेंगे, यानी कैसे उसको ड्रॉ करेंगे. द VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर अ रिवर्स बाइस डायोड इज शोन इन फिगर 2.11 on the next slide. Here the diode reverse voltage VR increases to left along horizontal axis. Now you can see that कि हमारे पास जो VR की वैल्यू है वो horizontal axis पर है but towards the left. तो origin से start करेंगे तो मतलब यहाँ पर VR is equal to 0 और जो हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो VR भी जो है उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा, यानी V बाइस के साथ साथ हमारे पास VR भी बढ़ता जा रहा है. Diode reverse voltage increases to left along the horizontal axis while diode reverse current IR जिसको हम कह सकते हैं it increases downward along the vertical axis. फॉरवर्ड बाइस में
हमारे पास वी एफ जो था राइट की तरफ था और आई एफ जो था वो अपवर्ड था, लेकिन यहाँ पर चूंकि रिवर्स बाइस में हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज, जो डाउनवर्ड वर्टिकल एक्सिस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द reverse current which is taken in microamperes. Very little reverse current usually until the reverse voltage across the diode reaches the breakdown value. और आप देख सकते हो इस फिगर में कि जब तक हमारे पास रिवर्स ब्रेकडाउन नहीं अकर हो जा या हमारा वी आर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर नहीं बन जाता जिसको हमने नी से डिक्लेयर किया हुआ है, तो हमारे पास इस पूरे अरसे में बहुत मामूली करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आई आर की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉलर है, नॉर्मली इन माइक्रो एम्पेयर्स यानी एक्सट्रीमली स्मॉलर है, जब तक कि हमारे पास वी बी आर और वी आर आपस में इक्वल नहीं हो जाते। एट दिस पॉइंट व्हेन द वी आर इज इक्वल टू वी बी आर, आई आर इंक्रीज वेरी रैपिडली, यानी इस नी पॉइंट पर अब हमारे पास आई आर जो है वो increase होता है very rapidly, resulting in overheating and possible damage if current is not limited to a safe level. और अगर हमने करंट को सेफ लेवल तक या एक लिमिट तक महदूद न किया तो बहुत चांसेस है कि ओवरहीटिंग की वजह से हमारा डायोड जो है वो डैमेज हो जाए। VBR फॉर डायोड डिपेंड्स ऑन द डोपिंग लेवल। VBR की सेटिंग कैसे करनी है ये टोटली डिपेंड करता है हमारे डोपिंग पर। अगर हम हैवीली डोपिंग करें तो हम कह सकते हैं कि हम उसको सेफली VBR पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो डोपिंग लेवल से डिसाइड होता है कि उसका VBR कितना होगा, सेफ होगा या अनसेफ होगा। A typical rectified diode has a breakdown voltage of greater than 50 volt. नॉर्मली जो मार्केट में अवेलेबल है 50 वोल्ट के ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ हमारे पास इजीली डायोड अवेलेबल है। However, some specialized diodes have a breakdown voltage that is only 5 volt. कुछ स्पेशलाइज्ड डायोड भी है जिनकी ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है। So here in this figure you can see that the VI characteristic curve for a reverse bias of a diode. और इस नी पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि करंट हमारे पास मैक्सिममली फ्लो हो रहा है या बहुत मामूली वोल्टेज के साथ करंट की अमाउंट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, वो रैपिडली चेंज हो रहा है। Now the complete VI characteristic curve, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है complete VI characteristic curve. So far we have studied the VI characteristic curve for the forward bias and for the reverse bias. Now by combining both these forward bias and reverse bias characteristic, we will have the complete VI characteristic curve. Here you can see that जो first quadrant है वो हमारे पास represent करता है forward bias का ग्राफ, और जो third quadrant है that is representing the reverse bias VI characteristic curve. The temperature effect on the VI characteristic curve. When we connect a diode in its forward bias mode and the temperature increases, so forward current will also increase for a given value of a forward voltage. यानी जब आपने डायोड को फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट किया हो और आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उसके साथ साथ फॉरवर्ड करंट भी इंक्रीज होगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ ए forward voltage. Also for a given value of a forward current, forward voltage decreases as shown in figure 2.3. और जब forward current हम उसके लिए forward voltage कंसिडर करें तो हम देखेंगे कि forward voltage जो है वो डिक्रीज हो रहा है। The blue curve is at a room temperature. अगले आने वाली स्लाइड पर जो हमारे पास फिगर गिवन है उसमें दो कलर्स में कर्व गिवन है, एक ब्लू कलर में और एक हमारे पास रेड कलर है। तो ब्लू कलर का जो है वो रूम टेम्परेचर को शो कर रहा है, यानी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए डायोड ऑन द रूम टेम्परेचर, और रेड कर्व इज रिप्रेजेंटिंग द एलिवेटेड टेम्परेचर VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यानी वो VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व जहां पर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया हुआ है। Remember that the barrier potential decreases by 2 millivolt for each degree centigrade increase in temperature. टेम्परेचर में जब हर दफ़ा 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट आएगा तो उसके साथ साथ 2 मिलीवोल्ट बैरियर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। Here you can see that in this figure. This blue color is representing the characteristic curve in forward bias and at room temperature of 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रेड कलर में अगर हम देखें सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ चेंज इन टेम्परेचर को ऐड किया गया है। मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा बाय सम डिग्रीज लाइक लेट्स से 25 प्लस 5 डिग्री या 25 प्लस 10 डिग्रीज, तो उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे क्या असर पड़ा कि हमारा बैरियर पोटेंशियल 0.7 के बजाय अब लेट्स से 0.7 माइनस
चेंज इन बैरियर पोटेंशियल, यानी जितना वोल्टेज उसमें फ़र्क आएगा वो हम उसमें से माइनस करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि 0.7 से पहले हमारा बैरियर पोटेंशियल पहुंच जाएगा और हमारा कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगेन यू कैन सी दैट कि करंट जो है अब बजाय ये कि 0.7 के बाद स्टार्ट होगा, अब 0.7 से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास करंट में हम कह सकते हैं कि इंक्रीज आ रहा है, जबकि बैरियर पोटेंशियल में डिक्रीज आ रहा है जब हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस में हो और टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर दें। So the temperature effect on the diode VI characteristics, the 1 ampere and 1 microampere marked on the vertical axis are given as a basis for a relative comparison of the current scale. ओके, ऑन द नेक्स्ट हैंड जब हम रिवर्स बाइस में डायोड को कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द रिवर्स करंट इंक्रीजेस। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रिवर्स करंट इंक्रीज होगा। डिफरेंस इन द टू कर्व इज एग्जेजरेटेड ऑन अ ग्राफ इन फिगर 2.13, ऑलरेडी हम उसको देख भी चुके हैं। द रिवर्स करंट बिलो ब्रेकडाउन रिमेन्स एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन यूजुअली बी नेग्लेक्टेड। दो चीजें याद रखें कि रिवर्स करंट जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, तो आप उसको इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगेन अगर हम इस फिगर में देखें तो रिवर्स बाइस में जो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग the characteristic curve of a diode when it is connected in reverse bias at room temperature like 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रेड वाला आपको शो कर रहा है कि जब हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया हो। तो अगेन रिवर्स करंट में भी इंक्रीमेंट आया है और हमारा जो VBR है वो भी पिछले वाले पॉइंट से जो कि रूम टेम्परेचर पर था उससे जल्दी पहुंच जाएगा, यानी हमारे पास वोल्टेज VBR में या VR में कमी आएगी जबकि करंट जो है वो इंक्रीज होगा। Okay, bias connection means that how we can connect our diode in forward bias and in reverse bias from the battery point of view। जब हम वोल्टेज सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बाइस में हमारे डायोड की कनेक्शन कैसे होगी। सो हियर यू कैन सी दैट अगेन कि जो डीसी बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगा। तो जस्ट आफ्टर द VF, जैसे ही वो VF पहुंचेगा 0.7, इन दिस केस अगर सिलिकॉन का बना हुआ होगा, उसके बाद कंडक्शन जो है वो मैक्सिमम स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस यूज किया हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द लिमिटिंग रेजिस्टेंस, जिसको सिर्फ डायोड की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया गया है कि उसका एक्सेसिव करंट जो है वो हमारे डायोड को डैमेज ना करे। रिवर्स बाइस में अगर हम देखें तो बैटरी के जो कनेक्शंस हैं उनको रिवर्स कर दिया गया है। हियर यू कैन सी दैट द positive terminal of the battery is connected with the negative terminal of the diode, while the negative terminal of the battery is connected with the positive terminal of the diode। डायोड की डायरेक्शन वही है, सिर्फ बैटरी को रिवर्स कर दिया गया है। अब हमारे पास करंट अगर हम कन्वेंशनली बात करें तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और जब नेगेटिव से इंटर होना चाहेगा तो डायोड रिवर्स बाइस में होने की वजह से इसको फ्लो नहीं करवाएगा एंड यू विल सी दैट द कंडक्शन अक्रॉस द डायोड इज इक्वल टू 0 एम्पियर। जब हमारे पास किसी किस्म की कंडक्शन नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा डायोड इस वक्त रिवर्स बाइस में है या ऑफ मोड में है। अगर हम यहाँ पर रेजिस्टर यूज ना भी कर लें तो चूंकि डायोड ऑपरेट ही नहीं हो रहा, वो कंडक्शन ही नहीं कर रहा, तो इस रेजिस्टर को भी रिवर्स बाइस में यूज करने की जरूरत नहीं होती। The diode approximations are, you can say that the diode 3 models, that is the ideal diode model, the practical diode model and the complete diode model। यानी हम डायोड को 3 मुख्तलिफ तरीकों से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आइडियल केस होगा, दूसरा केस हमारे पास प्रैक्टिकल है और तीसरा हमारे पास कंप्लीट डायोड मॉडल है। व्हाट इज आइडियल डायोड मॉडल? आइडियल मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल स्विच। हम कंसीडर करते हैं कि डायोड एक सिंपल स्विच की तरह है जिसने फॉरवर्ड बाइस में कंडक्शन करनी है और रिवर्स बाइस में उसने किसी किस्म की कंडक्शन नहीं करनी, या इन अदर वर्ड्स व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस इट आइडियली एक्ट्स लाइक अ क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच से मुराद कि लेट्स से इफ दिस इज अ सिंबल ऑफ ए स्विच, सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्विच होगा या जो हमारा डायोड है अगर फॉरवर्ड बाइस में होगा तो दिस विल बिहेव लाइक अ क्लोज स्विच, यानी जिसमें किसी किस्म की रेजिस्टेंस ना हो और मैक्सिमम करंट इसमें से फ्लो हो सकता हो। ऑन द अदर हैंड व्हेन द डायोड इज इन रिवर्स बाइस्ड इट आइडियली एक्ट्स लाइक एन ओपन स्विच। ओपन स्विच से मुराद क्या है कि इफ दिस इज अ सिंबल ऑफ ए स्विच, लेट्स से अब हमारा डायोड रिवर्स बाइस में बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि ओपन स्विच होता है। सो यू कैन सी द डिस्कनेक्शन इन द सेकंड केस
जिसमें हमारे पास हम देख सकते हैं कि डायोड ओपन है या ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है या सिंपली ऑफ है। अगर ये दोनों कॉन्टैक्ट्स आपस में मिले होंगे तो ऑन कंसिडर होंगे जैसा कि यहाँ पर गिवन है, और अगर दोनों आपस में डिसकनेक्टेड हैं तो हम कह सकते हैं कि दैट इज ओपन। जब ओपन है, ऑफ स्विच है, तो इसमें किसी किस्म की कंडक्शन पॉसिबल नहीं होगी। सो हियर यू कैन सी दैट फॉरवर्ड वाइज में मैक्सिमम कंडक्शन होगी, रिवर्स वाइज में हमारे पास किसी किस्म की फ्लो पॉसिबल नहीं होगी। The barrier potential, forward dynamic resistance and reverse current are all neglected. हाँ, ये है कि जब हमारे पास applications sensitive ना हो तो वहाँ पर हम इसका barrier potential, dynamic resistance, reverse current neglect कर सकते हैं या ignore कर सकते हैं, और तभी हम उसका ideal diode model use करते हैं। In case अगर हमें ये तमाम चीज़ें ignore नहीं करनी, then what we have to do? We have to use the practical model. Here you can see that the forward bias and the reverse bias connection of the ideal diode model. Here again we can see that this is in forward bias, this is behaving like a closed switch और जिसके across maximum current जो है वो flow हो सकता है, while in reverse bias it is behaving like a open switch जहाँ पर इसके across किसी किस्म की current ने flow नहीं होना। The ideal VI characteristic curve is shown in blue color. फॉर फॉरवर्ड बाइस हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में डायोड कनेक्ट होगा तो बिना किसी पोटेंशियल के ज़ाया किए या उसको ड्रॉप किए हमारे पास मैक्सिमम करंट जो है उसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जबकि ऑन द रिवर्स बाइस हम जितना भी मर्जी वी आर अप्लाई करें, यानी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड व्हेन इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बाइस, जितना भी मर्जी हम बढ़ाएं हमारे पास किसी किस्म का करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। The practical diode model. If we consider the practical diode model, then we have to include the barrier potential in our characteristic curve. So when the diode is in forward bias, it is equivalent to a closed switch in series with a small equivalent voltage source, that is VF, equal to the barrier potential, which is 0.7 volt in this case, with the positive side towards the anode. This represents the barrier potential which is dropped across the diode, यानी डायोड के across जो वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको हमने VF से रिप्रेजेंट किया हुआ था, जो कि एक्चुअली इस डायोड का बैरियर पोटेंशियल है, तो उसकी जगह पर हम उसका एक इक्विवेलेंट सोर्स या एक वोल्टेज सोर्स से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। It must be exceeded by the bias voltage before the diode will conduct and is not an active source of the voltage. और जब तक हम 0.7 वोल्ट से अपना बायस वोल्टेज इंक्रीज नहीं करेंगे तो हमारा डायोड कंडक्ट नहीं कर सकेगा, यानी डायोड फॉरवर्ड बायस में होने के बावजूद कंडक्शन नहीं कर पाएगा अगर आपका जो VF है वो 0.7 से लेस है। जैसे ही वो 0.7 होगा डायोड कंडक्शन स्टार्ट करेगा। एंड रिमेंबर दैट इज नॉट एन एक्टिव सोर्स ऑफ ए वोल्टेज, बल्कि ये तो वोल्टेज ड्रॉप है जो कि डायोड के क्रॉस ड्रॉप होता है। सो हम इसको एक बैटरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, DC battery से, but that is not an active source. When conducting, a voltage drop of 0.7 appear across the diode, और ये डायोड के across जो हैं वो appear होंगे। When the diode is in reverse biased, it is equivalent to an open switch just as in the ideal model. और चूंकि हम practical model में डायोड को normally फॉरवर्ड बाइस में ही इस्तेमाल करते हैं, तो उसका रिवर्स बाइस में बिल्कुल उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनेगा जो कि आइडियल के केस में था। The barrier potential does not affect the reverse bias, so it is not a factor. यानी दोनों में फर्क कहाँ पर आया? If you can see over here कि जो हमारे पास आइडियल मॉडल था उसमें हमने सिर्फ इसको एक स्विच के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ अकेला क्लोज स्विच नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ चूंकि डायोड अगर सिलिकॉन का बना हुआ है तो 0.7 ड्रॉप करेगा, या अगर जर्मेनियम का बना है तो 0.3 को ड्रॉप करेगा, तो ये परमानेंटली इसके क्लास ड्रॉप होते हैं। तो इस वजह से हम इस मॉडल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक क्लोज स्विच और उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स जो कि सीरीज में है। अब इन दोनों का कलेक्टिव जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, लाइक फॉर एग्जांपल 0.7 वोल्ट है, तो हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली इन रिवर्स बायस वी कैन रिप्रेजेंट द डायोड, the practical model of a diode, by just open switch, just like the case of ideal diode model.
अगर हम इसकी VI करेक्टरिस्टिक कर्व को कंपेयर करें आइडियल के साथ तो यू कैन सी दैट द ओनली डिफरेंस इज द बैरियर पोटेंशियल कि फॉरवर्ड बायस में हमारे पास 0.7 के बाद जो है वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा, जबकि रिवर्स बायस में ये बिल्कुल उसी तरह से है जो कि हमारे पास आइडियल डायोड मॉडल था। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आइडियल में जैसे ही हम जैसे ही हम 22 वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे तो फौरन कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता था एक रास्ते डायोड और मैक्सिमम करंट जो है उसमें से फ्लो हो रहा था। लेकिन अब एक रिस्ट्रिक्शन आ गई है कि जब तक 0.7 उसको मिलेगा नहीं तब तक हमारा डायोड बावजूद इसके कि वो फॉरवर्ड बायस में है वो कंडक्शन नहीं कर पाएगा। The third case is the complete diode model, or the third approximation is the complete diode model. Here most accurate approximation of the diode is the complete diode model. यानी इसमें हम डायोड के साथ जुड़ी हुई तमाम कंडीशंस या तमाम बातों को इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड्स द बैरियर पोटेंशियल, जैसा कि बैरियर पोटेंशियल है, द स्मॉल फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस जो हमारे पास डायनेमिक रेजिस्टेंस था फॉरवर्ड बायस में, एंड द लार्ज इंटरनल रिवर्स रेजिस्टेंस, और इसी तरह से रिवर्स बायस में भी जो रेजिस्टेंस था उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो तीनों चीज़ें जो पिछले केसेस में हमने इग्नोर किए थे यहाँ पर हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है कंप्लीट डायोड मॉडल में। When the diode is in forward bias, it acts as a closed switch in series with the equivalent barrier potential voltage VB and the small forward dynamic resistance. जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो जहां हम इसका बैरियर पोटेंशियल कंसीडर कर रहे थे वहां पर अब हम डायनेमिक रेजिस्टेंस भी कंसीडर करेंगे, जिसकी वजह से इसके ग्राफ में जो बेंड आ रहा है वो भी करेक्टरिस्टिक कर्व में हम शामिल करेंगे। When the diode is reverse bias, जब डायोड रिवर्स बायस में होगा, it acts as an open switch. अब रिवर्स बायस में हमें पता है कि डायोड ओपन स्विच के तौर पर बिहेव कर रहा है इन पैरेलल विद द लार्ज इंटरनल रिवर्स रेजिस्टेंस। लेकिन पिछली दो केसेस में हमने सिर्फ ओपन स्विच के तौर पर ही डिक्लेयर किया हुआ था। जब हम कंप्लीट डायोड मॉडल लेंगे तो हम ओपन स्विच के साथ साथ लार्ज इंटरनल रिवर्स रेजिस्टेंस भी कंसीडर करेंगे। द बैरियर पोटेंशियल डज नॉट इफेक्ट रिवर्स बायस, और बैरियर पोटेंशियल का रिवर्स बायस में चूंकि कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं तो वो यहाँ पर भी मेंशन नहीं होगा। हियर यू कैन सी दैट जब हम एक कंप्लीट डायोड कंसीडर करेंगे अलॉन्ग विद ऑल इट्स पैरामीटर्स तो हम देख सकते हैं कि एक क्लोज स्विच है, उसके साथ स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस है इस डायोड की, और जो इसका बैरियर पोटेंशियल है, ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे पास डायोड की फॉरवर्ड बायस पे जो है उसका इक्विवेलेंट बना रहे हैं। तो ये कंप्लीट डायोड मॉडल को रिप्रेजेंट करता है जब डायोड फॉरवर्ड बायस में हो। सेकंड फिगर में अगर हम देखें तो जब डायोड रिवर्स बायस में हो और हम उसका कंप्लीट डायोड मॉडल कंसीडर करें तो वी कैन से दैट कि रिवर्स बायस में किसी किस्म का कंडक्शन नहीं होना बिकॉज दैट इज बिहेविंग लाइक अ ओपन स्विच, लेकिन फिर भी हमने रिवर्स में एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट की होती है कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि रिवर्स बायस में भी हमारा ये डायोड जो है कंडक्शन स्टार्ट कर लेता है। तो नॉर्मल कंडीशंस पर इसमें किसी किस्म की कंडक्शन नहीं होगी। हाँ, जब एबनॉर्मल कंडीशन होगी, जब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे तो रिवर्स बायस में होने के बावजूद हमारा डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर लेगा। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज हमने अप्लाई किया होता है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हमारा डिवाइस जो है वो डैमेज हो जाए। तो इसी वजह से हम रिवर्स बायस में डायोड का कंप्लीट मॉडल इन दो चीज़ों पर रिप्रेजेंट करते हैं कि ओपन स्विच और जिसके साथ पैरेलल में हमने रिवर्स रेजिस्टेंस कनेक्ट की है और ह्यूज अमाउंट ऑफ ए रेजिस्टेंस जो है हमने कनेक्ट की होती है। The complete VI characteristic curve for a silicon material will be such that कि फॉरवर्ड बायस में अगर हम देखें तो 0.7 तक हमारे पास बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ए करंट था जिसको हमने IF का हुआ था। जैसे ही 0.7 पहुंचेगा हमारे पास कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब पिछले केस में जब हम प्रैक्टिकल मॉडल पढ़ रहे थे तो हमारे पास IF की ग्राफ इस तरह से बन रहा था जो कि स्ट्रेट था। यहाँ पर ये जो बेंड आया है दैट इज बिकॉज ऑफ द डायनामिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर डायनामिक रेजिस्टेंस भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल भी इंक्लूडेड है। जबकि रिवर्स बायस में अगर हम देखें तो सिवाय हमारे पास रिवर्स करंट की कुछ नहीं है। हाँ, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जिसको हमने कहा था VBR कि जिस पर हमारे पास रिवर्स में भी डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर लेता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम नॉर्मली डायोड को इसके VBR पॉइंट तक ऑपरेट ही ना करें। स्मॉल रिवर्स करंट ड्यू टू द हाई रिवर्स रेजिस्टेंस, और चूंकि बहुत बड़ी रेजिस्टेंस हमारे पास कनेक्टेड होती है तो इसकी वजह से बहुत मामूली करंट जो है इसके क्रॉस फ्लो हो रहा होता है।
that was all for the lecture number 7. Now what is next in lecture number 8? In lecture number 8 we will discuss the basic DC power supply, important application of a diode, that is the rectifiers. Rectifiers are those circuits which convert the AC signal into DC signal. It has two types, the half wave rectifier and the full wave rectifier. So we will discuss these two types in detail by discussing their block diagram, their operations are working, the average value of the half wave and full wave rectifier output voltage. Similarly, we will discuss what is the effect of the barrier potential on the output of a half wave rectifier as well as the full wave rectifier. And we will also discuss what is the peak inverse voltage in case of a half wave rectifier and in case of a full wave rectifiers. Full wave rectifiers can further be classified into center tape transformer based full wave rectifier and the bridge full wave rectifier. So we will discuss all these two types of a full wave rectifier and in terms of all these parameters. Thank you very much. That is all for today. If you have any question, you can ask me through my email address shahid.csit@suit.edu.bk. Thank you very much.